So with that, we go to the other book, Super Accelerated Living. Living को अगर super accelerate करना है, जो जैसे कार में हम एक्सेलरेटर दबाते हैं तो कार की स्पीड तेज हो जाती है, तो अगर अपनी स्पीड से आपको जिंदगी चेंज करनी है, then it is there, Super Accelerated Living by मैं इसको करा ली है, कॉपी करा ली है। इसको किताब को? यस मैम। वेरी गुड, हमें आपसे ये उम्मीद थी। करा ली कभी, या बहुत पहले करा ली थी। वेरी गुड। सो आज हम स्टेप 3 पढ़ रहे हैं। अगर आपको याद है, बेंचिनो मसारो 3 स्टेप्स ऑफ एपिक लाइफ और मैनिफेस्टेशन के हमको बता रहे थे। पहला स्टेप था, आप सोचो, अपनी पावर को पहले कॉन्जर अप करो, है ना। जैसे लायन को बोलते हैं ना, दैट लायन टेक्स 3 स्टेप बैकवर्ड्स इवन इफ इट वांट्स टू अटैक अ टाइनी एंट। जो शेर होता है वो हमेशा मतलब अपनी एनर्जी को गेन करने के लिए जब भी एक चींटी के ऊपर भी पाउंस करता है तो वो 3 स्टेप पीछे लेता है अपनी एनर्जी को कॉन्जर करने के लिए, और वो फिर वो अटैक करता है। तो वही उन्होंने स्टेप 1 में हमको भी वही करवाया, वो 3 स्टेप बैक कराए कि अब आप सोचो कि आप बहुत पावरफुल पर्सन हो, आप क्रिएटर सीट पे हो, क्रिएटर स्पेस में हो, और फिर आप तो पहले वो हमने क्रिएट किया दैट आई एम द पावर टू क्रिएट एनीथिंग इन माय लाइफ। मुझे अपनी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज पता है, मुझे अपनी इन्फिनिट पावर पता है। मैं एक जगह बैठ के आई कैन क्रिएट एनीथिंग फ्रॉम माय माइंड, यूजिंग माय माइंड, ठीक है, इमेजिनेशन। फिर उसके बाद स्टेप 2 था, इंसिस्ट ऑन सीइंग एंड थिंकिंग ओनली योर प्रेफर्ड रियलिटी। आपका प्रेफरेंस क्या है? इंसिस्ट कि आप उसी बारे में सोच रहे हो, उसी बारे में बात कर रहे हो, उसी बारे में लिख रहे हो। तो आपकी प्रेफरेंसेस क्या है लाइफ में, प्रेफर्ड रियलिटी। वो सेकंड था, जिसमें हमने देखा कि कितनी विविडली हमको बहुत सीन वो अपनी इमेजिनेशन में क्रिएट करके हम उस चीज को हासिल कर सकते हैं। अब स्टेप 3 वो बता रहे हैं, amp up the super high presence to your God frequency। God frequency मतलब love frequency होता है, जो दुनिया की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। तो कैसे वो उस स्टेज में जाए ताकि वो चीज, बिकॉज जब तक गॉड फ्रीक्वेंसी में नहीं जाते, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी में नहीं जाएंगे ग्रेटिट्यूड एंड लव की, तब तक मतलब फीलिंग को स्टेप अप करना है, दैट्स व्हाट इट मींस। एंड शुभाशीष अंकल इज रीडिंग फॉर अस टुडे, वी आर सो लकी। Good morning, Deepti. Good morning, Priya. Good morning, everyone. Step 3, amp up to super high presence to your God frequency. Practice this right now with me. Paste onto me whatever you want me to be. What would you prefer that I be? What would the relationship between you and me ideally be like? Force that upon me. I need to use forceful words because we have assumed that we are victims for so long. Since you are stuck in a state that is not real, stuck in the sense that you are separate from your reality, I need to counter that with a word like force. So energetically force upon me what you desire me to be. Leave me no choice to be any other way. Be very sincere in this practice and aware of your integrity, and be in your presence. This is not just a thought, it is presence. You have to overpower what is appearing with presence. You have to manifest and generate the experience you want consciously, because that's where we generate reality from a state of super high, fine-tuned presence, from a high frequency state. So you need to match that frequency in order to get results, and in order to become more conscious of the fact that this is what you are doing all the time. You are God. You are God. You are nothing else but God. So look at me or anything that appears to you and overwhelm me with you. What would you prefer me to be? I start undressing, I start dancing, haha. But you see, even if I don't do the thing you are demanding me to do or become, that doesn't change a single thing for you. All you keep seeing is your preference. All you keep feeling is your preference. In your mind, in your consciousness, I am still what you desired me to be, no matter how I act, no matter what I say,
no matter how doubtful it may seem, no matter how unsuccessful your generation may seem. That does not matter to you. You still see and perceive your preference. You will dominate your reality with your preference. All you see is your preference. This is actually one of the most powerful keys to becoming conscious again of the fact that you are a God, that you are a creator. It is to actually practice overpowering and overwhelming your reality with your chosen presence, your chosen frequency. Then you will really fall in love with your reality, with your creation. You will start to become one with it rather than thinking there is unity, but still feeling like you are a victim of an external reality. Yeah, 1 second, uncle. We'll just take a break here because वो नहीं तो बहुत तो इसको हिंदी में अगर हम डिकोड करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा, ये हमारा स्टेप 3 है. तो फर्स्ट एंड सेकंड में हमने विजुलाइज किया, हमने वो इंसिस्ट किया कि हमको अपनी लाइफ में यही देखना है और किसी और पर्सन से भी अगर रिलेटेड है तो उनको हमको वैसे ही देखना है जैसे हम चाहते हैं उनको देखना. इट रियली डजंट मैटर. फिर स्टेप 3 में वो बता रहे हैं एम्प अप, मतलब एम्पलीफाई. एम्प अप का मतलब होता है इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ाओ अपनी प्रिफर्ड रियलिटी को देखने के लिए. उसमें वो बोल रहे हैं दैट उन्होंने वर्ड यूज किया है फोर्स. फोर्स योर सेल्फ टू सी ओनली योर प्रेफरेंस, है ना. चाहे वो बोल रहे हैं जैसे उन्होंने अपने बारे में बताया इसमें कि बेंटिनो मैसारो क्योंकि लोगों के साथ बैठे हुए थे ना, ये किताब तो है नहीं, है तो लेक्चर की ट्रांसक्रिप्ट है. तो लेक्चर जब वो दे रहे थे तो वो स्टेज पे बैठते हैं, एक छोटा सा स्टेज होता है, हमेशा बहुत ज्यादा टॉल नहीं होता, वहां पे बैठते हैं और आधे टाइम वो उनकी पता नहीं कहाँ पे आंखें होती है, मतलब आपको पता लगता है जब वो बोल रहे होते हैं दैट यू नो गॉड एंड डिवाइन इज टॉकिंग टू हिम. और सामने लोग बैठे होते हैं बिल्कुल शांत, बहुत हाई अटेंशन में, फ्रीक्वेंसी उस रूम की बहुत हाई होती है, ऑब्वियसली वो मिस्टर बेंटिनो मैसारो हैं. और फिर वो बात जब कर रहे होते हैं लोगों से तो वो उन लोगों को बोल रहे थे जो उनके साथ बैठे हुए थे मीटिंग में कि तुम लोग मुझे वो देखो जो तुम मुझे देखना चाहते हो. वो कहते हैं यहां से शुरुआत करते हैं कि तुम लोग मुझे वैसे देखो जैसे तुम मुझे देखना चाहते हो. यू नो, अगर आपको मुझे देखना है तो जैसे डांसिंग, इफ यू वांट टू सी मी डांसिंग, तुम अपनी इमेजिनेशन से मुझे डांस करता हुआ देखो. वो ये बोलते हैं चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूं, इट रियली डजंट मैटर. जब तक आप अपने दिमाग में वो रियलिटी क्रिएट नहीं करोगे जो आपका चोजन प्रेफरेंस है, तब तक सामने वाला वैसे नहीं कर सकता. तो अगर आपको आपका परसेप्शन क्या है दैट यू वांट टू सी मी डांसिंग, तो आप प्लीज गो हेड एंड सी मी डांस इन योर माइंड. और वो डेटर नहीं होना चाहिए, मतलब वो चाहे मैं कुछ भी करूं, आपकी प्रेफरेंस, आपकी चोजन रियलिटी बदलनी नहीं चाहिए और आपको डेलिबरेटली वो क्रिएट करना आना चाहिए, चाहे कोई कुछ भी सर्कमस्टेंस हो आसपास के आपके, है ना. जैसे आपका सपोज बैंक बैलेंस 50,000 रुपए है लेकिन आपको उसमें 50 लाख देखने हैं अभी, राइट. तो आपका चोजन प्रेफरेंस है मुझे 50 लाख देखने हैं अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में, तो आप वही देखो. पता होना चाहिए आपको 50 लाख कैसे दिखते हैं, पता होना चाहिए कितने जीरोज हैं उसके बाद. आप अपने मन में यही देख रहे हो कि 50 लाख हैं, तो अब आप सोच रहे हो कि मैं इतना अमाउंट लेट मी पुट फॉर म्यूचुअल फंड, इतने अमाउंट की मैं 1 साल की एफडी कर देती हूँ, इतना अमाउंट का देन लेट मी जस्ट पुट इट, ये लिक्विड कैश है. या आपको कुछ खरीदना है बड़ी चीज या घर का रेनोवेशन कराना है तो इतना अमाउंट आपने उसमें से 5 लाख निकलवा लिया और उससे आप घर का रेनोवेशन करा रहे हो, राइट. इस तरह की चीजें अगर आप ये सब प्लान करोगे तो अब आप अपने आप को फोर्स कर रहे हो ये चूज करने के लिए और ये इमेजिन करने के लिए कि आपके पास 50 लाख रुपए हैं, क्योंकि आप उसका डिविजन सोच रहे हो कि दिस इज हाउ आई वांट टू इन्वेस्ट. 10 लाख का लेट मी टेक म्यूचुअल फंड, 10 लाख आई कैन पुट इन माई एफडी, यू नो, बाकी आई कैन पुट हियर, और 5 लाख निकाल के अलग से रख दिए कि लेबर्स को दे देंगे, ये घर में काम कराना है या जो भी खरीदना है या कुछ री इन्वेस्टमेंट, आपको जो भी आपके प्लान्स हैं. इसका मतलब है आपने अपने कॉन्शियस माइंड से ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जिसमें आपने अपने आप को बिलीव कराया कि मेरे पास ये है, क्योंकि आप उसको इन्वेस्टमेंट प्लान देख रहे हो, राइट. तो इस तरह से जब हम प्लान करते हैं या कोई भी चीज, अगर आपको कुछ भी क्रिएट कर सकते हो अपने दिमाग की पावर से, यू नो, बिकॉज माइंड हैज दैट पावर दैट वो इस वक्त अगर सूखा पड़ा हुआ है किसी शहर में, वहां पे रेन भी कॉज कर सकता है.
है ना। अगर आप में, आपकी लाइफ में लव, जॉय, एक्साइटमेंट एंड एंथुजियाज्म है, ये बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की चीजें होती हैं, तो और वो कंटिन्यू करके रखना, है ना, कंटिन्यू करके रखना, अपने स्पिरिट को हाई करके, अपनी फ्रीक्वेंसी को हाई करके रखना ऑफ योर चोजन फ्रीक्वेंस, उसमें आपकी बहुत इंटरनल ग्रोथ होती है। ठीक है, सो इट इज ओके अगर आपकी जिंदगी में अभी कंसिस्टेंसी नहीं आ पा रही है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें आपकी जिंदगी इतनी, मतलब आपके लिए आप खुद इतने अहमियत वाले इंसान बन जाते हो कि आप अपने आप को चॉइस ही नहीं देते, राइट। तो उस स्टेज पे पहुंचने की जर्नी होती है, वो जर्नी हम आपकी इजी कर रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट पहाड़ों पे जाके, मतलब इट्स नथिंग लाइक पहाड़ों पे जाके और आप वो कर रहे हो, इस जैसे बेंटिनो मैसारो रहते हैं अलग अलग एग्जॉटिक लोकेशंस पे, बहुत एग्जॉटिक लोकेशंस पे जाते हैं। ये अपने रिट्रीट करते हैं बाली में, थाईलैंड में, वेरी बीच पर्सन। सो बिकॉज इनको वो सारे वाटर स्पोर्ट्स और ये सब बहुत पता है, खूब स्कूबा डाइविंग करते हैं, सब करते हैं, है ना। तो बहुत ये सिर्फ बीच रिजॉर्ट्स में ही आपको मिलेंगे, ये बीच रिजॉर्ट्स में अपने वो करते हैं सारे रिट्रीट। तो कोई वो नहीं है दैट बहुत नेचर से कनेक्टेड है, बहुत अच्छा लगता है इनको, इनको समुद्र बहुत पसंद है। सो इनका कोई वैसा नहीं है दैट, एंड इनकी स्टडी गर्लफ्रेंड है जिनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में ये हैं, एंड वो भी चेंज हुई हैं, पहले दूसरी थी अभी दूसरी हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, इसी दुनिया में रहने वाले इंसान है ना, और हम और आप जैसे ही इंसान है। लेकिन इसी बीच रह के आप कभी भी अगर आपने उनको सुना हो यूट्यूब पे, ही इज वेरी कनेक्टेड टू द यूनिवर्स, वो हायर कॉन्शियसनेस खुद ही है। कनेक्टेड क्या होंगे, वो खुद ही हायर कॉन्शियसनेस है। उनकी बातें सुन के पता लग जाता है, उनको देख के पता लग जाता है। तो वो यही कह रहे हैं कि चोजन प्रेफरेंस में रहना सीखो, जिंदगी अच्छी करनी, जिंदगी में बदलाव लाना, अपनी ही हेल्थ को रिकवर 100% करना, जो आपको चाहिए, जिस तरह की जिंदगी आप बिताना चाहते हो, अगर आपको वो अचीव करना है तो आप उसको अपने चोजन प्रेफरेंस से स्टिक होके कर सकते हो। फोर्स अपॉन इट ही सेइंग, है ना। तो वो हमको कुछ कुछ वर्ड्स दे रहे हैं, पिछले पिछले वाले उसमें दिया था, इंसिस्ट, इंसिस्ट दैट मैं, आई विल अचीव इट नो मैटर व्हाट, चाहे कुछ भी हो जाए, आई विल, आई एम, आई कैन डू इट, आई नो दैट आई कैन, इंसिस्ट इंसिस्ट इंसिस्ट। सेकेंड वाले में उन्होंने वो बताया था। थर्ड वाले में ही सेइंग दैट फोर्स करो उसको, अपने आप को, कि आप उसी फ्रीक्वेंसी में रहो लगातार, that is what he is telling us, and don't be a victim of your reality, you are not a victim, you are the creator। और देखिए उन्होंने कितने अच्छे से बताया, यू आर गॉड, यू आर गॉड, उसको एक्सक्लेमेशन लगाया, उसके बाद उसको बोल्ड में लिखा है उन्होंने, ताकि हमको समझ आ जाए दैट हम में वो सारी ताकत है। ये नहीं कि आज से हम भगवान हो गए, एरोगेंस वाला नहीं है ये हमारा, वो रियलाइज करने के लिए हमको है दैट आई हैव द पावर ऑफ द क्रिएटर, मतलब आई एम, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम द क्रिएटर, आई आई नो दैट आई हैव माई पावर, और मैं अपने बलबूते पे जिंदगी में कुछ, कितनी भी लेवल की सफलता, कितनी भी लेवल की हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप्स, आई कैन मास्टर इट। एंड देन धीरे धीरे अगर हम ये करते हैं तो हम इस चीज के मास्टर बन जाते हैं। ठीक है, सो ये किताब थोड़ी सी हैवी ड्यूटी शुरू हुई है, लेकिन बहुत हल्की होती जाएगी समय के चलते चलते, और बड़ी प्लेफुल एंड फन है, बहुत प्लेफुल किताब है। अभी भी तो ये गेम ही करा रहे हैं ना हमको, माइंड गेम करा रहे हैं, यही बोल रहे हैं ना कि चाहे मैं कुछ भी कर रहा हूँ, आप मुझे डांसिंग करने दे, आपको पावर होनी चाहिए कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट आई डू, आप मुझको वो करता हुआ देखो जो आप चाहते हो, और मैं क्या कर रहा हूं इससे आप बिल्कुल भी अफेक्ट मत हो। That is what he's saying. So that means you don't have to be the victim of what is the outside circumstance. आप वो देख पा रहे हो जो आपको लाइफ में चाहिए, उस थॉट को और उस विजन को होल्ड ऑन टू करो। हाँ जी। And remember, when you practice forcing your preference upon your reality, it doesn't mean you lose your integrity and do whatever the fuck you want to people. That's not what I am saying. What I am saying is that you overpower your experience of what is with only your preference while maintaining complete respect for the seeming existence of other people's free will. At the same time, all you see and experience is your preference, regardless of how people respond, regardless of what they say. This not only works for relationships, it works for anything, for your career, for any project or event you want to generate, for your everyday experiences, for your body,
for the way you want to feel, and so on. Regardless of what appears, you can choose to see and manifest and generate only your preferred state. Now, initially, it may feel like you are overpowering your reality. That's okay. Just practice and get the hang of it. Instead of asking, what is this reality all about? You decide what it is all about. Then that is what it is all about. So there is your answer. You are here to be a creator, not a victim. We are all lost sheep. We have forgotten the fact that we are gods and goddesses. We are not here to find things out, not really. Yes, this existence is about learning, but we are not really here to discover things as such. We are here to create things that have never been created before. We are here to generate. How do we generate? We generate according to our true desires, according to our true inspiration, not just I want a lot of money, so I want to have that. Not those types of preferences. They are irrelevant. Although you can practice with those as well, that's fine. But what I am talking about is a really high, finely tuned, intentional state of love light that can have any shape. The diamond of love light has many facets. It can be bliss, it can be excitement, it can be inspiration or love or compassion or integrity. It can be sincerity or joy. Whatever is your highest excitement, choose one of the facets of that high vibrational love light of the one infinite creator, tap into it and dominate your reality with it. Don't care what anyone else thinks. Don't care what they say or how they act. Again, this doesn't mean that you are not present to other beings. It simply means that all you focus on and generate is the mind state and energy state of your preference. And it doesn't mean that others have to act in certain ways, but you will see that when you start exuding your preference and when it is really in alignment with your higher self and their higher selves, that they do start responding to your energy. Not because you told them to, not because you dominated them, but because you generated the frequency that took you into the parallel reality where the highest option in the best interest of both of you is now becoming manifest. Yeah. So that is all we'll read today. Thank you so much, Uncle, for your incredible, phenomenal reading. Thank you. Thank you so much. We Thanks can a lot. sense your energy is like Bentino Massaro. Thank you very much. थैंक यू सो व्हाट वी हैव रेड हियर बहुत फोर्सफुली वो हमको बोल रहे हैं कि हम सब लॉस्ट शीप हैं तो एक तरह से ब्लेम कर रहे हैं कि तुम सब लॉस्ट शीप हो तुमको पता ही नहीं है कि यू आर सच अ पावरफुल क्रिएटर तुम लोग अपना सारा पोटेंशियल इस जन्म में वेस्ट कर रहे हो इफ यू हैव बीन बोर्न एज अ शिरोमणि विच इज द हाईएस्ट फॉर्म ह्यूमन बीइंग्स आर कॉल्ड शिरोमणि है ना कहते हैं कि आप 100 योनियों में जन्म लेके फिर आपको इंसान का रूप मिलता है तो वो इंसान का रूप मिलता है जिसका बहुत इवॉल्व माइंड होता है ना और उसमें से भी 96% शक्ति हमारे सबकॉन्शियस माइंड की होती है जिसको सही और गलत का ज्ञान ही नहीं है जिसको पता ही नहीं है उसमें ये है ही नहीं प्रोग्राम कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है उसमें बस यही है कि अपनी फ्रीक्वेंसी कॉन्शियस माइंड को यूज करते हुए कॉन्शियस माइंड को बोलो आई चूज अ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ लव लाइट जॉय सक्सेस एंड ग्रेट ग्रोथ ठीक है अब आपने ये वाली फ्रीक्वेंसी चूज की अब आप उसको उसी फ्रीक्वेंसी में रहो एंड नो दैट यू आर द क्रिएटर यू आर वेरी पावरफुल तो वो यही इसमें बताते हैं कि एनवायरमेंट में क्या हो रहा है इससे आपको कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए आप अपनी फ्रीक्वेंसी में रहो और सारी वो चीजें अपने दिमाग में अपने कॉन्शियस माइंड 4% इसीलिए दिया हुआ है ताकि हम उससे चूज कर पाए कि हमको क्या चाहिए और हम वो रिजेक्ट कर दे जो हमको नहीं देखना है ना
अगर कोई ऐसी चीज बता रहा है जिसमें बहुत नेगेटिव 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 कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, तो हम चूज कर सकते हैं कि हम उसको कैसे कवर अप करें अपने ऑपोजिट थॉट को डाल डाल के, राइट। तो ऐसे में हमारी धीरे धीरे फ्रीक्वेंसी अपने आप हाई होती जाएगी और नेगेटिव चीज हमारा माइंड, कॉन्शियस माइंड भी एक्सेप्ट ही नहीं करेगा उसके बाद। मतलब कॉन्शियस माइंड को पता लग जाता है, वो भी ऐसे वायर्ड हो गया है कि उसको पता है कि मुझे ये बात सुननी ही नहीं है, मुझे इस बारे में बात सोचनी ही नहीं है। एंड यू विल कीप एब्जॉर्बिंग एंड चूजिंग थॉट्स एंड इमेजेस जो आपके ड्रीम के अलाइनमेंट में है, जो आपके चोजन प्रेफरेंसेस हैं। ड्रीम का नाम तो नहीं लेते, ये चोजन प्रेफरेंस बोलते हैं कि व्हाट डू यू प्रेफर। तो बोल रहे हैं उस चीज में और उस वाइब्रेशन में रहो, अपने आप को डिप मत होने दो। तो कह रहे हैं चाहे आउटर एनवायरनमेंट में कुछ भी हो रहा, आपको उससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जैसे उन्होंने बताया कि चाहे मैं बैठा हूं, लेकिन अगर आप मुझे डांसिंग देखना चाहते हो, मतलब मेटाफोरिकली वो हमको ये समझा रहे थे, ये बताने के लिए कि आउटर एनवायरनमेंट में चाहे कुछ भी हो रहा है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एंड देन ही इज सेइंग दैट जिस तरह से, और वो फ्रीक्वेंसी आप जनरेट करो ऑफ योर चोजन प्रेफरेंस, और हायर सेल्फ में आप, मतलब आप, द गॉड विद इन मी इज कनेक्टिंग टू द गॉड विद इन दैट पर्सन, है ना। अगर आप कोई भी अच्छी चीज, आप किसी इंसान को बहुत सफल और बहुत खुश देखना चाहते हो, बहुत हेल्दी देखना चाहते हो, सपोज आपके एनवायरमेंट में कोई है जिसको आप बहुत खुश, बहुत हेल्दी और बहुत सफल देखना चाहते हो, सो यू वांट टू सी दैट पर्सन वेरी हैप्पी एंड वेरी सक्सेसफुल एंड वेरी पीसफुल, काम, then you have to yourself generate that frequency जिसमें आप अपने इमेजेस में उस पर्सन को सक्सेसफुल, काम और बहुत वैसा देख रहे हो, पीसफुल एंड सुपर सक्सेसफुल एंड वेरी हेल्दी, है ना। तो चाहे अभी कुछ भी रियलिटी हो, इट रियली डजेंट मैटर, आपका चोजन प्रेफरेंस पे amp up that, force yourself to continue thinking and talking about it, that's what he's saying। तभी हम वो फ्रीक्वेंसी लगातार जनरेट कर पाएंगे जो हमारी पैरेलल रियलिटी में उस हकीकत को क्रिएट करेगी। और पैरेलल रियलिटी में उस हकीकत को क्रिएट किया, वो बहुत जल्दी आपकी नजरों के सामने भी आ जाएगी। सो दैट्स व्हाट उन्होंने 3 स्टेप में हमको बताया। पहले तो हमको बताया भगवान की सारी शक्तियां आपके अंदर हो, आप क्रिएटर हो, यू आर गॉड, आप अपनी क्रिएटर सीट पे बैठो और विजुलाइज करो, सोचो अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड को यूज करते हुए। सेकंड में उन्होंने बताया इंसिस्ट ओनली ऑन सीइंग योर चोजन प्रेफरेंस, है ना। मतलब इंसिस्ट करो अपने आप को, और वो भी उन्होंने इटैलिक्स में लिख के बोल्ड में लिखा हुआ था कि इंसिस्ट करो, बिकॉज ह्यूमन बींग्स बहुत अफेक्ट होते हैं अपने एनवायरनमेंट से। और बचपन से अभी तक वी हैव बीन लिविंग द लाइफ ऑफ अ विक्टिम कि ओ गॉड मुझे बीमारी हो गई, अब क्या होगा, है ना। लेकिन हमको इमिजिएटली सोचना है, मुझे देखना क्या है, मुझे चाहिए क्या। इंसिस्ट दैट माई बॉडी इज सुपर डुपर हेल्दी, आई एम इंजॉइंग द बेस्ट ऑफ हेल्थ, राइट। ये आपको इंसिस्ट किया आपने। फिर आप नंबर 3 में आए, जिसमें आपको एम्प अप करना है, उस फ्रीक्वेंसी को बहुत ऊपर लेके जाना है, जिसमें आपको लगातार अपने आप को फोर्स करना पड़ेगा कि आपको चोजन प्रेफरेंस को क्रिएट करो जो आप चाहते हो, बाय योर विजन्स, बाय यूजिंग योर कॉन्शियस एंड योर सबकॉन्शियस माइंड चूज करने के लिए। और सबकॉन्शियस माइंड में वो पेनिट्रेट हो जाती है इमेजेस जो आप लगातार देख रहे हो, और इमोशनलाइज करो उसको, दैट यू आर फीलिंग सो गुड बाय क्रिएटिंग दैट एंड यू आर सीइंग दैट, जैसे वो ऑलरेडी अभी आपकी जिंदगी में हो रहा है ना, उसको, और उसमें उसको इमोशनलाइज करो, दैट यू फीलिंग सो गुड, दैट वाओ आई एम टोटली रिकवर्ड, थैंक यू यूनिवर्स, इस तरह करके। और उसी चोजन प्रेफरेंस को फोर्स करते रहो अपने आप पे, क्योंकि नहीं तो बार बार डिप हो गए। तो सबकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग होती है ये कि जब आप लगातार उस फ्रीक्वेंसी में रहते हो, तो सबकॉन्शियस माइंड अनवांटेड चीजों को रिजेक्ट कर देता है, वो अपने आप वीड आउट हो जाएंगी, है ना। जैसे किसान भी होता है, अगर वो कुछ किसी चीज की खेती कर रहा है, कोई उसने बीज बोया तो, और अच्छा वाला प्लांट बोया, है ना, जैसे टमाटर का पौधा बोया, उसने टमाटर के बीज डाले और टमाटर की खेती कर रहे हैं वो, तो उसमें बहुत सारे वीड्स को जो भी बोलते हैं ना, जो अनवांटेड प्लांट्स उगाते हैं, तो वो सॉइल का नरिशमेंट लेने लग जाते हैं। तो फिर वो टमाटर के जड़ों को वो नरिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो जो वीड्स हैं वो नरिशमेंट ले लेते हैं। तो किसान का पहला काम रोज होता है कि आइडेंटिफाई करना कहाँ कहाँ पे वीड्स हैं, उनको निकालना, ताकि जो पौधा उन्होंने उगाया है, टमाटर का पौधा, उसकी जड़ों को अच्छा नरिशमेंट मिले, राइट। तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जब हम लगातार अपना चोजन प्रेफरेंस को इंसिस्ट करेंगे और फिर स्टेप 3 में फोर्स करेंगे, तो ऑटोमेटिक वीडिंग होती है।
मतलब अपने आप सबकॉन्शियस माइंड में से वीड आउट होते हैं सारे अनवांटेड थॉट्स और अनवांटेड, और आप जनरली अपने आप को हाई फ्रीक्वेंसी में रख पाओगे. सो दिस इज व्हाट वी हैव फॉर टुडे. कल हम पढ़ेंगे हाउ इट ऑल वर्क्स. या दैट इज व्हाट वी विल, हाउ यू क्रिएट योर वर्ल्ड फ्रॉम योर ओन एनर्जी, यूजिंग योर ओन एनर्जी. पहले तो अपनी एनर्जी को हाई करो, फिर अब अपनी एनर्जी से उस गाड़ियों को चलाओ जो आप चलाना चाहते हो. दैट इज व्हाट इट मीन्स. सो या दिस विल डू टुमारो.